بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمن اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں محفوظ معاشرہ کی ایک اور کڑی کے ساتھ۔ مزید کچھ ایکسرسائز اور مزید جو کچھ گیم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ آج ہم کام کی بات میں بات کریں گے روزے کے طبی فوائد کے حوالے سے کہ روزے کے ہمارے جسم کے اوپر کیا اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کر میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی تو ناظرین، ایکسرسائز شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو کوئی بھی ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے اس سے پہلے آپ نے جسم کو وارم اپ کرنا ہے، تو اس کی وارم اپ کی ارلی ایکسرسائز جو ہے نا میں نے آپ کو بتا دی ہوئی ہیں، تو ایک دفعہ پھر ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کے جمپ کرنے ہیں، یہ دیکھیں اس طرح آپ کے ایڑیاں نہیں لگیں۔ پھر آپ نے پاؤں کو آگے اور پیچھے لے کے آنا ہے اس طرح، اور پھر آپ کو پاؤں کو آپ نے دائیں اور بائیں لے کے جانا ہے، پھر اس طرح سٹاپ، پھر اس طرح آپ نے ہاتھوں کو جسم کے ساتھ ملانا ہے۔ جب آپ کے پاؤں کھلیں گے ہاتھ بھی کھلیں گے، یہ دیکھیں اس طرح 1 2 1 2، پھر اس طرح، پھر آپ اور دونوں ہاتھوں کو آگے لے کے آنا ہے اور اس کو سائڈ پہ لے کے جانا ہے اور واپس سپیڈ سے آنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پھر آپ نے اس سائڈ پہ، پھر اس کے ساتھ ہم نے دوسری ایکسرسائز جو آپ کو بتائی تھیں قد بڑا کرنے کی ایکسرسائز بھی کریں ساتھ ساتھ، وہ سامنے گھٹنوں کو ساتھ لگانا پاؤں جوڑ کے، یہ والی ایکسرسائز ہے۔ اور واپس آ کے آپ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کمر کو آگے کی طرف جھٹکا دینا ہے، پھر آپ نے لیفٹ سائڈ باڈی کو ٹرن کرنا ہے، پھر رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے، یہ والی ایکسرسائز۔ پھر آپ نے انگلیوں کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ زمین پر لگانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیچھے ساتھ سے پیچھے لے کے جانا ہے، یہ والی ایکسرسائز۔ یہ ایکسرسائز کریں گے، اس کے ساتھ آپ کو جو اسٹریچنگ کی ایکسرسائز کروائی ہیں وہ والی ایکسرسائز، پیٹ کی ایکسرسائز کروائی ہیں، 6 پیک کی ایکسرسائز کروائی ہیں۔ تو آج ہم 2 ایکسرسائز 6 پیک کی جو ہیں وہ اس میں اضافہ کریں گے۔ سب سے پہلے ایکسرسائز، آپ کے پاؤں کے درمیان 1 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، پھر آپ کے ہاتھ آپ کی گردن کے پیچھے، یہ اس طرح آپ نے پنجے کے اوپر نیچے بیٹھنا ہے اور پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ باڈی آپ کی بالکل اسٹریٹ رہے گی، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ جی 1 2 3 4۔ جب آپ نے نیچے آنا ہے تو آپ کی ایڑیاں اٹھ جائیں گی، پنجے آپ کے زمین پر ہوں گے۔ یہ ایکسرسائز آپ نے 15 سے 20 کا سیٹ لگانے ہیں، 15 سے 20 کے آپ نے 3 سیٹ لگانے ہیں۔ اس کے بعد ایک ماؤپو پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں کھڑے ہوں گے کم از کم 3 سے 4 منٹ کے لیے۔ اس طرح آپ نے اس پوزیشن میں کم از کم 3 سے 4 منٹ کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ تھک جائیں آپ اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں، آپ ریسٹ کریں 1 منٹ کا، پھر دوبارہ جو ہے اسی پوزیشن میں دوبارہ جو ہے وہ آئیں گے۔ یہ پوزیشن دوبارہ چیک کر لیں جی۔ آپ کی ایڑیاں جو ہیں وہ ان کا رخ آمنے سامنے ہوگا، پنجے جو ہیں ان کے اپوزٹ ہوں گے کہ آپ کے ہاتھ کی آپ کی پوزیشن دیکھ لیں، اپنے ہاتھ کی پوزیشن دیکھ لیں۔ جب آپ اس پوزیشن میں موجود ہوں گے آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے، آپ نے آگے کی طرف جھکنا نہیں ہے۔ اگر آپ آگے کی طرف جھکیں گے تو اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس پوزیشن میں آپ نے کم از کم 3 سے 4 منٹ رکنا ہے، پھر اس کے بعد آپ ریسٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نیکسٹ ایکسرسائز جو کہ 6 پیک سے تعلق رکھتی ہیں۔ جی تو ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں گیم کی طرف۔ گیم میں سب سے پہلے ہم نے جرگی کی ہے، پھر اس کے بعد ماکیز کر رہے ہیں۔ اب ماکیز میں ہم نے آرے ماکی کر لی ہے، اب ہم جائیں گے مم تھم ماکی کی طرف۔ مم تھم ماکی، شریعت کھنگنے چھمبی جسم ساگی اپو جرگی نا دور سٹ نیٹ چل دس۔ ہم کریں گے 2 بنجرگی۔ 2 بنجرگی کا مطلب ایک آسن پر 2 پنچ اور آواز آئے گی تائی کوان۔
न। अब इसके बाद है सेबंजर्गी। एक काशन पर हम 3 पंच करेंगे और आवाज आएगी ताइक्वांडो न। अब हम करेंगे आर्यमा की। एक काशन पर एक साइड न। सिट। अब हम बढ़ते हैं आगे ममथम माकी की तरफ। ममथम माकी, ये आपके पेट पर कोई वार कर रहा है, उसको आपने कैसे ब्लॉक करना है। ये हमारे ब्लॉक्स हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आपके पेट पर अगर कोई वार कर रहा है तो उसको आपने कैसे ब्लॉक करना है। पहले आपको मुकम्मल जो है वो दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको 3 स्टेप में इसको समझाएंगे, है ना। दूर सिट। अब इसको आराम से करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। एक साइड हम 3 स्टेप में करेंगे। 1 2 3। 1 2 3। 1 2। दोबारा देख लें। 1 2 3। 1 2 3। 1 2। ये नाज़रीन, आप इसको स्लो करके, इसको ठहरा के आप बेशक वीडियो देख लें। काम की बात। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आज हम काम की बात में रोज़े के तिब्बी फ़वाइद के हवाले से बात करेंगे कि इंसान जब रोज़ा रखता है तो उसके जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है और इन 30 दिनों को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 2 रोज़े जो हैं वो पहले हिस्से में शामिल हैं, बाकी तीसरे से 7वें रोज़े तक उसका दूसरा हिस्सा है, फिर उसके बाद 8वें से 15वें रोज़े तक जो है वो इसका तीसरा हिस्सा है, चौथा हिस्सा जो है वो उसका 16वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक है। तो पहले हम बात करेंगे पहले 2 रोज़ों के हवाले से कि इंसान जो पहले 2 रोज़े रखता है उसके अंदर कौन सी तब्दीलियां जो हैं वो रूनुमा होती हैं। पहले 2 रोज़ों में इंसान के जिस्म से चीनी के जो मुज़र असरात हैं वो कम हो जाते हैं, इंसान की धड़कन सुस्त हो जाती है और इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और आसाब जो हैं वो ग्लाइकोजिन को आज़ाद कर देते हैं, जिनसे इंसान को कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आसाब जिन ग्लाइकोजिन को आज़ाद करता है और दूसरे जो जहरीले मादे जब हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं तो उसके नतीजे में हमें वक्ती तौर पर थोड़े वक्त के लिए जो है वो सर दर्द, हमें चक्कर आते हैं और इसके अलावा हमारे मुंह से बदबू आती है, हमारी ज़बान के ऊपर कुछ कड़वाहट सी महसूस होती है। तो ये जो है ये नतीजा है पहले 2 रोज़ों के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर पहले 2 रोज़ों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीली आना शुरू हुई है। जी, दूसरा हिस्सा जो है वो है तीसरे से 7वें रोज़े तक। तो तीसरे 7वें रोज़े तक हमारे जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1, जिस्म की चर्बी ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, पिघल जाती है और बाज़ बंदों का जिस्म जो है वो नरम और मुलायम हो जाता है और इंसान का निज़ाम इन्हिज़ाम जो है वो बेहतर होता है और इंसान के निज़ाम इन्हिज़ाम को जो है वो रुख्सत मिलती है, जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि उसको रेस्ट मिलना चाहिए। जिस्म के अंदर मौजूद खून के अंदर सफ़ेद खुलिये जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होता है। इस सारे अमल की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो फेफड़े हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस होती है, वक्ती तौर पर थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए उनको जो है वो तकलीफ़ महसूस होती है। आंतों की जिल्द पर जो जहरीला मवाद होता है वो ढीला पड़ जाता है। आंतें हैं ना हमारी अंदर जो अंतड़ियाँ हैं, उनके जिल्द के ऊपर मौजूद जो जहरीला मवाद है वो ढीला पड़ जाता है और भूख जो है वो बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा होती है। जी, तो अब बढ़ते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ, जो कि 8वें रोज़े से लेकर
15वें रोज़े तक है। आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, तंदुरुस्त और तवाना और चुस्त महसूस करेंगे। और अगर आपकी कोई पुरानी चोट है या कोई पुराना ज़ख़म है वो आपको महसूस होगा। क्योंकि अब आपके जिस्म ने कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी है। आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत वो जारी है। जब वो हरकत कर रही है तो फिर आपकी जो पुरानी चोट है या पुराना ज़ख़म जो है वो आपको अब महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपके जिस्म के अंदर मौजूद मुर्दा सेल्स और कैंसर ज़दा जिन सेल्स को कैंसर हो चुका है, यानी कि वो ऐसे हैं जैसे काम ही नहीं कर रहे, उनको खाना शुरू कर देता आपका जिस्म। और ये काम जो है ये आप लोग पैसे देकर केमियोथेरेपी के ज़रिए करवाते हैं। केमियोथेरेपी के ज़रिए पैसे देकर ये काम करवाते हैं, जो कि रोज़ेदार को जो है मुफ्त में भी ये काम मिल रहा है। ये आपके जिस्म के अंदर ये तब्दीली आ रही है। ये जो आपके पट्टे हैं ना, ये गर्दन के पीछे वाले और ये वाले पट्टे जो है ये खिंच जाते हैं और टांगों के अंदर एक किस्म का जो है ना वो खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि अब आपके जिस्म ने कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो शुरू कर दी है। और ये निशानी है इस चीज़ की कि आपके जिस्म जो है वो क्या कर रहा है, अब कुव्वत मुदाफ़ियत को जारी रखे हुए आपका जिस्म, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पट्टे जो है वो खिंचाव का शिकार हैं और आपकी टांगों के अंदर जो है वो थोड़ा सा खिंचाव जो है वो महसूस हो रहा है। तो आपने इस सूरत में करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि जब आपको अपने पट्ठू में या अपने असाब में खिंचाव महसूस हो या अपनी टांगों में खिंचाव महसूस हो तो आपने करना ये है, नीम गर्म पानी लेना है, उसके अंदर नमक डाल के आपने गरारे करने हैं। रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना, आपने इफ्तारी की हालत में, जब आपका रोज़ा नहीं होगा, शाम को इफ्तारी के बाद या तरावी के बाद या सुबह जो है वो आपने सहरी से पहले या सहरी के बाद भी गरारे कर सकते हैं। नीम गर्म पानी के अंदर आपने नमक डाल के गरारे करने हैं। इंशाल्लाह इससे आपके असाब का तनाव कम होगा, आपके पट्टे जो खिंचाव है वो कम हो जाएगा और टांगों के अंदर जो आपको खिंचाव महसूस हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम चौथे हिस्से की तरफ, जो कि 16वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े तक है। तो इसमें 16वें रोज़े से लेकर 30वें रोज़े के दरमियान आपका जिस्म अब तवाना, अपने आप को तवाना महसूस करेगा। आप दिमागी तौर पर अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। आपके आसाब जो हैं वो अब एक किस्म के फ्रेश हैं, आपके अंदर तनाव मौजूद नहीं है, आपके जिस्म जो है उसके खुलिये जो है वो खुल चुके हैं, आपके जिस्म से जहरीला मवाद जो है वो खारिज हो चुका है। अब आपका बदन जो है वो पूरी तरह काम करना शुरू कर चुका है। अब आपकी ज़बान जो है वो उसमें कड़वाहट नहीं रही, ज़बान साफ़ हो गई है, साफ़ नहीं बल्कि सुर्खी माइल हो गई है, और आपकी याददाश्त जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, याददाश्त तेज़ हो जाती है। तो ये जो है ये आपके जिस्म के अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियां हैं जो रोज़ा रखने की वजह से आई हैं। तो ये है तिब्बी फ़वाइद, रोज़े के तिब्बी फ़वाइद जो हमारे जिस्म पर रूनुमा होते हैं। अब इसका जो उखरवी फ़ायदा है वो ये है कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करते हैं, अपनी आखिरत संवारते हैं और अपनी रूह को जो है वो तस्कीन पहुँचाते हैं। अब रोज़े के बारे में एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि अल्लाह ताला कहता है नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, अखलाक हसना अपनाओ जन्नत मिलेगी, सुन्नत रसूल अपनाओ जन्नत मिलेगी, दूसरों के साथ भलाई का मामला करो जन्नत मिलेगी। लेकिन जो बंदा रोज़ा रखेगा उसको अल्लाह मिलेगा। तो जिसको अल्लाह मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, फिर उसको कुछ हासिल करने की, कुछ पाने की ज़रूरत, कोई तलब नहीं है। तो इसलिए रोज़ा रखें और रोज़े से जो है वो अपनी रूह भी पाक करें और अपने जिस्म को बहुत सी बीमारियों से निजात भी दिलाएं। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासर हो। वस्सलाम।